Now stop, stop, stop. Thank you. Yes, very nice, very nice, very nice. And you say to yourself, I am the winner. I am the winner. I am the winner. I am the We winner. all are the winners. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Run, Yes, run, faster, run, faster, still everybody. faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast, 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 fast. Come on. Yes, yes, yes. Run faster, faster. Come on. Still faster. Yes, yes. Come on, faster, faster, faster. Yes. Come on, fast, fast, fast. You can do it. Come on. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on, faster, faster. Yes, 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 yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful, wonderful. Just stop, 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 stop. Thank you, Yes, thank you. I am the winner. And now, We say all to are the yourself, winners. yes, Yes. I am the winner. We are all Yes, open and I am the winner. receptive. I am the winner. I am the winner. And now we end, we say to ourselves, I can. I Okay, repeat. can. I can. I will. I must. I can. I can. I will. I must. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay, so who would like to read? Hakeem or Rajeshwari, would you like to read today? मैं कभी मेरे को ग्रुप लेफ्ट भी करना पड़े, कस्टमर आए तो कभी पूरा नहीं सेशन हो पाएगा. Oh, right, right. No problem. Rajeshwari, would you like to read? Today's chapter is completely my favorite chapter. Rajeshwari, you can do it. Come on. हिंदी में है, इंग्लिश नहीं कर पाऊंगी, हिंदी है तो कर पाऊंगी. कर पाओगी आराम से, आती है तुम्हें इंग्लिश आराम से. ओके, मैं ट्राई करती हूँ. हाँ. पता है तुम्हें, मेरी मदर इन लॉ ने भी एक बार रीड किया था, कितना अच्छे से रीड किया था उन्होंने. ओके. Okay, so let's start our. I will share the screen. No, okay, I can read. Try करती हूँ मैं. Yes, yes, definitely you can. It's okay, Amina. अगर अमीना रीड करती तो सबसे अच्छा, क्योंकि मुझे इतना अच्छा नहीं आएगा. नहीं नहीं, चलो ट्राई करो. ओके, फिर अमीना ले लेगी अगर नहीं कर पाओगे तो. Hi baby, how are you? Hi. Hi. You are so cute. क्या है? हेलो करो. हेलो, आपका नाम क्या है बेटा? नाम बताओ. मेरा नाम है दिया चंदवानी. Oh, you're so cute. मैं अंदर जाके. हाँ, तुम लोग खेलो. So today's chapter is my favorite, one of the most favorite chapters, which I do diligently almost every day, and I've been doing it for about 10 months, more than 10 months, I think. So yeah, I've been doing, even in winter also, like when it was freezing temperatures outside, I used to go out and do my magic footsteps, no matter what. I decided I will do no matter what. So I did. So you can see here in this picture. So like on the road, there are magical sparkles. So yes, your magic footsteps have so much to offer you that you can really, I mean, it's remarkable how after doing the magic steps, your feelings completely change. जब आप ये मैजिक फुटस्टेप्स करते हो, उसके बाद आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ही बदल जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है. तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है. तो अब हमें रोंडा बर्न बताएंगी कि हमें कैसे करना है. तो राजेश्वरी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. A 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life
depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein. Um, with those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude every day. यानी Einstein, हमें ये सब तो कभी भी पता नहीं था। हमने आइंस्टाइन के बारे में बहुत पढ़ा है। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, नोबेल प्राइज भी उन्होंने विन किया है और उन्होंने इतनी सारी डिस्कवरी दी है टाइम के रिलेटेड, और कितनी 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 सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं उनकी जो रियली रियली वंडरफुल डिस्कवरीज हैं। ये शायद ही किसी को इतना सब कुछ रिवील हुआ था। क्यों? क्योंकि इनकी आदत थी, वो हमेशा 100 टाइम्स एवरी डे वो अपने आप को रिवाइंड करते थे कि मेरी जो भी लाइफ है अभी, इनर या आउटर जो भी लाइफ है, दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और उन्होंने बोला कि वो हमेशा डिपेंड कर रही है दूसरे लोगों के ऊपर, दूसरे लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है हमारी पूरी लाइफ। उन्होंने ये हमेशा अपनी याद को 100 टाइम्स याद दिलाया पूरे दिन में, लिविंग और डेड। एंड देन आई मस्ट एक्सर्ट माई सेल्फ इन ऑर्डर, यानी मुझे भी इतना ही काम करना है, इतने सेम मेजर में ग्रेटिट्यूड देना है सबको जितना मैंने रिसीव किया है या रिसीव कर रहा हूँ। तो जो लोग या तो जिंदा है अभी और नहीं भी है, यानी वो आइंस्टाइन इवन पास्ट में से भी लोगों को थैंक्स बोल रहे हैं अभी भी जब वो थे। तो कितनी बड़ी बात है कि हम लोगों को तो, यानी हमें तो बस हम अपनी चीजों को ढूंढ नहीं पा रहे, और वो कैसे लोगों को थैंक्स बोल रहे हैं जो अभी यहाँ पे है भी नहीं। तो जैसे अब हम अपनी बात करें, अपनी इंडिया की बात करें कि इंडिया आजाद क्यों हो पाया, गांधी जी की वजह से। तो हम गांधी जी को भी इतना थैंक्स बोल सकते हैं कि आज हम जो भी है इतना फ्रीडम से हम जी रहे हैं। रियली इंडिया इज अ बेस्ट कंट्री टू लिव। अगर देखा जाए तो वहां पे कोई किसी को ये रोक टोक नहीं है कि आपको यही रिलीजन फॉलो करना है या आपको यही करना है। हाँ, थोड़ी ऐसी समाज की चीजें हैं जो धीरे 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 बदल जाएगी, वो अपने एक जन की सोच से बदलेगी, ऐसे ही नहीं बदलेगी। किसी न किसी को अपनी सोच बदलनी होगी तो पूरा समाज बदलेगा। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत अफेक्ट करता है कि कैसे आप लोग उसको लेते हो, कैसे आप लोग आगे बढ़ते हो। हमारी थिंकिंग पे आपको अभी ये तो पता चल गया कि जो हम सोचते हैं वही हमारी लाइफ होती है। तो ये थैंक्स देना इतनी बड़ी चीज होती है जिसको हमने ऐसे ही डिस्काउंट कर लिया है। हम सोचते ही नहीं कि हाँ ये इतनी बड़ी चीज हो सकती है। अगर आइंस्टाइन को देखे तो उन्होंने भले इतनी सारी डिस्कवरी की गिफ्ट हमें दी है, पर उनकी सबसे बड़ी गिफ्ट हमारे लिए ये है ग्रेटिट्यूड एवरी डे। ओके, सो या राजेश्वरी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग। Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. यस, सो जैसे आज की प्रैक्टिस का मेन सोर्स ही आइंस्टाइन है। रोंडा बर्न ने उनसे इंस्पिरेशन लेके ये पूरा चैप्टर आज ये क्रिएट किया है। तो हमें भी आज की ये प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस होती है। तो आपको भी ये करना है, मैजिकल फुटस्टेप्स। ये आपकी लाइफ में कहाँ से इतनी सक्सेस और इतनी खुशियों से भर देगा आपको भी पता नहीं चलेगा। और वैसे लगेगा कि ये क्या कोर्स कर सकता है, डिफरेंस, बट बिलीव मी इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स। मेरे लिए तो ये मैजिक फुटस्टेप, जब भी मैं कुछ नेगेटिविटी में जाती हूँ, जब भी मैं अच्छा नहीं फील करती हूँ, मैं तुरंत बाहर जाके मैजिक फुटस्टेप्स लेना चालू कर देती हूँ।
मैं अपनी जॉब पे इतना मुझे चलना होता है बिफोर आई कैन रीच टू माय फार्मेसी। तो हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में से ऐसे और पार्किंग भी थोड़ा दूर होता है, तो मुझे चल के जाना होता है। मैं हमेशा मैजिक फुटस्टेप्स लेके ही चलती हूँ। और by the time I reach my pharmacy, my workplace, मुझे ऑलरेडी इतना अच्छा फील हो चुका होता है। दैट इज ऑल्सो लाइक इन अर्ली मॉर्निंग। सोचो कि आपकी मॉर्निंग ही मैजिक फुटस्टेप से चालू होगी तो कितना मजा आ जाएगा। तो आप भी ये प्रैक्टिस करें, अगर कर सकते हो तो मॉर्निंग में ही कर ले। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैजिक वॉक के साथ आप ये मैजिक फुटस्टेप्स कर सकते हो। सो यहाँ पे ये बोल रहे कि गॉड गिव यू गिफ्ट ऑफ 86,400 seconds टुडे, हैव यू यूज्ड वन टू से थैंक यू। तो ये जो राइटर है विलियम वॉर्ड, उन्होंने बोला कि हमारे पास 86,400 seconds होते हैं पूरे दिन में, तो क्या हम उसको एक सेकंड भी हम यूज करते हैं थैंक यू बोलने के लिए? तो एक्चुअली अच्छा है कि हम अभी ये प्रैक्टिस में आ गए। हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इतनी करते हैं कि जिसकी वजह से हमने बहुत सारा ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड करते हैं हम लोग एवरी डे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। पर आप अगर ये सोचोगे कि हाँ पहले तो हम ये नहीं करते थे, कभी कभी हमारा दिन ऐसा जाता कि हम दिन में एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते थे। सो या राजेश्वरी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic word thank you as your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot thank you, next foot thank you, and continue saying the magic words with every footstep. यस, सो यहाँ पे ये प्रैक्टिस बहुत सबसे ज्यादा इजी है। पर आपको पता है कि ये जो मैजिक फुटस्टेप्स की प्रैक्टिस है, इजी और सिंपल प्रैक्टिस है, उसको क्यों यहाँ पे 19th वाले चैप्टर में लिया है? क्योंकि अब तक आप ये जो अभी तक की जो 18 प्रैक्टिस कर चुके हो, उससे आपको पता भी चल गया है कि हाँ थैंक यू बोलने से क्या फायदा होता है। कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे धीरे धीरे छोटे छोटे से भी भले सही, पर मैजिक्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी स्टार्ट हो गए होंगे। तो अब तक आपको पता चल गया कि हाँ थैंक यू जबरदस्त काम करता है। यानी अब आप जो फुटस्टेप्स लोगे मैजिक फुटस्टेप्स, तब आपको अंदर से ही वो एक थोड़ी एक तरह की फीलिंग्स भी आने लगेगी। जब आप थैंक यू वन स्टेप नेक्स्ट स्टेप जैसे जैसे आप स्टेप्स लोगे, तो आपको आज क्या करना है प्रैक्टिस में कि एक एक स्टेप्स के साथ आपको थैंक यू बोलना है। अगर आपको हिंदी में बोलना है, गुजराती में धन्यवाद, शुक्रिया, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। और यहाँ पे आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आप किनको थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि वो अगर सोचने जाओगे तो फिर स्टेप्स के साथ आप थैंक यू नहीं बोल पाओगे। इसलिए आपको ऐसे ही जितने आप स्टेप्स लेते जाते हो थैंक यू खाली बोलना है। आपको ये इसमें नहीं पढ़ना है कि किनको थैंक यू बोल रहे। पर जैसे 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 आप 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने करते जाओगे ये प्रैक्टिस, तो अंदर से ही कोई कोई चीजें अपने आप आती जाएगी कि आप किस किस चीजों को थैंक यू बोल रहे हो। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे अंदर अंदर चलता है कि मैं किन किन को थैंक यू बोल रही हूँ, कितनी सारी चीजें, और उसके साथ मेरी फीलिंग्स भी आ जाती है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time. Through your house from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another.
यस, सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं कि मैजिक फुटस्टेप्स आप स्पेशल जाके वॉक करके ही ले सकते हैं। आप कहीं पे भी कुछ भी वॉक करते हो तब भी आप ये अपनी हैबिट बना लीजिए। जब भी वॉक करें हमेशा मैजिक फुटस्टेप्स यानी थैंक यू बोलते जाए। इसमें आपको एक मैं रहस्य बताती हूँ। अगर आप वैसे ही चलते हो अपने रोजमर्रा की लाइफ में, जब हम चलते हैं तब क्या होता है कि हम यानी मतलब कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें सोचते रहते हैं अपने माइंड में। ये पूरा थिंकिंग का गेम है। अगर आप सोचो तो हम पूरे दिन में अपने आप को भी ट्रेन कर रहे हैं कि हम जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड की तरफ अपना ध्यान रखें, इंस्टेड ऑफ वो छोटी छोटी चीजों पे जो हमारा ध्यान हमेशा खींचती रहती है और हमारे ध्यान को भटकाती रहती है। वैसी चीजों की जगह पे हम, हाँ, जहाँ पे थिंकिंग करने की जरूरत है, कोई काम के लिए थिंक करना है तो वो ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम बेवजह की थिंकिंग करते रहते हैं जिसमें कोई हमारी थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है, जिसको हम ओवर थिंक भी बोलते हैं। तो ये ओवर थिंक वगैरह कम हो जाएगी जब आप अपने आप को पूरी चीजों में कुछ भी करते आप थैंक यू बोलना चालू कर देते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। जब भी आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे वॉक कर रहे हो, कुछ भी है, ट्रैश आउट लेने जा रहे हो, कॉफी लेने जा रहे हो, या कहीं पे भी आप कोई भी वॉक कर, घर में अपने वॉक कर रहे हो, वहां पे भी आप ये थैंक यू के स्टेप्स ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत ही अच्छी हैबिट है डेवलप करनी। तो आपको ये डेवलप करनी है, आज से जाके रोज करनी है। ऐसा नहीं कि आज के दिन के लिए कि ये प्रैक्टिस है। आपको ये प्रैक्टिस रोज रोज अगेन एंड अगेन, इवन दिन में भी जितनी बार कर सकते हो इतनी बार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसको बिल्कुल डिस्काउंट मत करना। अगर रोंडाबन ने ये 19th डे पे लिखा है तो इसका बहुत ही बड़ा उसके पीछे वो है, इम्पोर्टेंस है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterward. If you are feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. हाँ, तो यहाँ पे रोंडाबर्न ने क्या बताया कि कुछ भी होगा, आपकी फीलिंग्स है या नहीं है जो भी, पर आप नोटिस करोगे बिग डिफरेंस अपने फीलिंग के अंदर आफ्टर यू हैव टेकन दिस मैजिक फुटस्टेप्स। आप जब भी आप ये मैजिक फुटस्टेप्स लोगे, उसके पहले की फीलिंग्स और उसके बाद की फीलिंग आप नोट करना। इससे बहुत फर्क पड़ता है अपनी फीलिंग्स के अंदर। और एक और चीज के, चलो हम अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि हमें थैंक यू बोलने से पहले मतलब बोलते हुए या हम जब लिखते हुए हमको फीलिंग्स भी आनी चाहिए। पर ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आपको फीलिंग्स नहीं भी होगी, थैंक यू वाली फीलिंग्स, तो भी चलेगा। आपको अगर उस टाइम पे बोलते हुए फीलिंग्स नहीं भी आ रही है तो भी कोई बात नहीं। आपको बस इतना ही करना है कि 3-4 मिनट के लिए वॉक करना है जिसमें आपके 100 फुटस्टेप्स होंगे। इतनी देर तक आपको चलना है और एक एक स्टेप के साथ आपको शुक्राना करना है, थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। जो भी आपको आप बोलना चाहे आप बोल सकते हो। ओके, तो जैसे रोंडाबन तो अपनी कार में जाती है, अपने घर में किचन में से बाथरूम तक जाती है, कहीं पे भी जाती है, वो ये प्रैक्टिस करती है फॉलो। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how
long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice because you will be counting instead of saying thank you the magic words with each step. तो इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे आपको काउंट नहीं करना है, पर आपको 100 फुटस्टेप्स ले इतना आपको डिस्टेंस पहले नक्की कर लेना है कि हाँ इतने डिस्टेंस में इतने अप्रोक्सीमेट 100 हो जाएंगे, यानी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रही कि 3-4 मिनट ही ले लीजिए। इन्होंने यहाँ पे 1.5 मिनट बोला है, 90 मिनट्स, तो नॉट 90 मिनट, सॉरी 90 सेकेंड्स, पर आप ले सकते हो, उससे ज्यादा ही ले लेना, तो आपके मोर देन 100 हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। ओके, तो मे बी 2-3 मिनट तो एटलीस्ट करना। कहीं पे भी आप कर सकते हो, मे बी घर में ही आप 2-3 मिनट चल सकते हो अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप बाहर जाके लेके आओ ये मैजिक फुटस्टेप्स। इससे क्या होता है कि आप बाहर भी निकल जाते हो, एक दिन में एक बार तो बाहर जरूर निकलना चाहिए। बाहर की दुनिया अलग होती है हमारे घर से, घर की दुनिया से। ये मैंने बहुत बार पढ़ा है कि दिन में एटलीस्ट एक बार आप सन में जाके निकले, सन के अंदर जाके बैठे, सन को देखे, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो ये एक एडिशनल प्रैक्टिस मैं आपको बता रही हूँ कि आप बाहर निकले, एटलीस्ट घर में आप रहते हो, जो भी करते हो आप, एटलीस्ट एक बार बाहर जाए, जरूर जाए, कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैजिकल फुटस्टेप्स के लिए चले जाए। और ये मैं अगर जाती हूँ तो मैं एटलीस्ट 10 मिनट्स फुटस्टेप्स करके ही आती हूँ, मेरे 1000 तो मिनिमम हो ही जाते हैं। तो आपकी चॉइस है, आप के जो भी करना चाहते हैं। मे बी आप अपने टेरेस पे भी जा सकते हो अगर कहीं बाहर आप नहीं जाना चाहते तो, ये आपकी चॉइस है आप कहाँ पे करना चाहते हो। पर प्लीज करें इसको, करने से आपको खुद को ही पता चलेगा कि क्या फायदा होता है। मुझे कि बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, मैं अपना तो शेयर कर ही रही हूँ आपसे कि मैं तो हमेशा करती हूँ, मुझे तो बहुत जबरदस्त फील होता है उसके बाद। पर मैं दूसरे लोगों का भी शेयर कर सकती हूँ, जैसे मेरी बहन ने पहले स्टार्ट किया था तो उसका भी अभी एक रूटीन बन गया है, और मुझसे हमेशा शेयर करती है कि बहन मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, ये मैजिकल फुटस्टेप्स है। तो और कई ऐसे लोग हैं जो हमारे ग्रुप में भी ये चीज हमेशा शेयर करते हैं कि क्या कैसे उनको इतना अच्छा फील होता है ये प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, सो या यू कैन रीड फ्रॉम हियर। When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words, thank you, 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. जो आइंस्टाइन ये प्रैक्टिस एवरी डे करते थे। अगर आपको इन पे विश्वास नहीं तो आप जाके देख भी सकते हो, गूगल पे ढूंढ सकते हो, पता नहीं, पर मुझे तो बहुत ही विश्वास है कि हाँ ये आइंस्टाइन ये करते थे। उनकी पूरी आप कहानी पढ़ोगे, मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी भी पढ़ी हुई है आइंस्टाइन की, तो मुझे पता है कि वो कैसे इंसान थे। तो आप भी ये करें, जो ये आइंस्टाइन की प्रैक्टिस है, बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस होती है ये। ओके, सो लेट्स रीड द प्रैक्टिस नंबर 19, मैजिक फुटस्टेप्स। Magic footsteps. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Take 100 second, take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. Third, with each footsteps, say and feel the magic words thank you. Four,
Just before you going to sleep tonight, hold your magic rope in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. So आज की तो प्रैक्टिस एकदम इजी प्रैक्टिस है. With each footstep you have to say and feel the magic words thank you. That's it. और फीलिंग्स नहीं भी आए तो उसकी चिंता मत करना, बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना. ठीक है. और ये प्रैक्टिस मैं आपको बोलूंगी कि आपको नहीं, आज ही नहीं करनी. आपको अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है और फास्ट करना है तो आपको ये प्रैक्टिस रोज करने से बहुत फायदा होगा. ये प्रैक्टिस मैं रोज करती हूँ, 10 महीने से कर रही हूँ और आपको भी बोलती हूँ कि आप भी करें. और राजेश्वरी, आपने बहुत ही अच्छा रीड किया, जबरदस्त रीडिंग था. एक बार भी नहीं लगा कि इंग्लिश में आपको इतना वो है, एक माइंड ब्लॉक है आपका. सीरियसली थैंक यू. बहुत ही थैंक यू अच्छा ओनली read बिकॉज ऑफ यू. सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से. अरे ये तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं रीड करूं. नहीं थैंक नहीं, यू. थैंक यू यू. आर थैंक यू. कॉन्फिडेंट पर्सन. या थैंक ओके. यू. सो ये आज के पॉइंट्स ऑफ पावर है, तो पॉइंट्स ऑफ पावर मैं रीड करती हूँ. एक्चुअली यू कैन रीड वन पॉइंट एंड देन थोड़ा सा ठहरना, तो अगर समझाना होगा तो मैं समझाऊंगी, क्योंकि ये पूरा हमारा जो चैप्टर गया है उसके पॉइंट्स ऑफ पावर है. ओके. Everything in the universe is magnetic and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. हाँ, तो ये तो सबको पता है अभी तक तो कि ये पूरा यूनिवर्स जितने भी चीजें हैं इसमें वो मैग्नेटिक होती है. ये जो फिजिक्स में हमने पढ़ा था, जो मैग्नेटिक का लॉज या फिजिक्स के लॉज जो हमने पढ़े हैं, सेम उसी तरह से यूनिवर्स में एक चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है. और हमारे थॉट्स में भी सेम एनर्जी होती है, फीलिंग्स के अंदर सेम एनर्जी होती है. और जो भी हम फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते हैं वही हमारी लाइफ होती है. यहाँ पे कोई लक काम नहीं करता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं होती है कि यूनिवर्स किसी को फेवर करता है और किसी को फेवर नहीं करता, किसी को बहुत ही खराब लाइफ देता है और किसी को बहुत ही गंदी लाइफ देता है. ऐसा कुछ नहीं है. जो भी हमने थॉट्स, हमारे जो भी विचार हमने एक्वायर किए होंगे बचपन से, उसी तरह की हमारी लाइफ धीरे 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 बनती है. तो आपको भी अगर आप पेरेंट्स हैं, आप खुद भी अभी पेरेंट्स हैं, तो अपने बच्चों के लिए आप ये सोचे कि हाँ, मेरे बच्चों को मुझे कैसे शेप करना है, कैसे उनकी उनकी जो विचारधारा है उसको मुझे कैसे बदलना है. आपके हाथ में बहुत सारी चीजें होती है. हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी कि बच्चों पे भी होगी कि वो कैसे ले रहे हैं, पर हाँ, आपके हाथ में बहुत सारी चीज है. एज ए पेरेंट आपकी फ्रीक्वेंसी या आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो बच्चों को बहुत अफेक्ट करती है. तो मैं यहाँ पे सभी पेरेंट्स से बोलूंगी कि अपने बच्चों की तरफ एक कंपैशनेट नजर से देखें, हमेशा उनको लिए अच्छा फील करे. अगर उनसे कोई गलती होती भी है तो भले आप डांटे, पर उनसे ये 3 चीजों का ध्यान रखें कि अगर आप उनको कुछ बोल भी रहे हो तो पहले उनके बारे में कोई अच्छी चीजें बोले. उसके बाद आपको अगर बोलना है कि हाँ, अगर मान लो मैं अपनी बेटी की बात करती हूँ मारिया, तो मारिया उसको मैं बोल सकती हूँ कि जैसे मारिया, अच्छा ये आप अपने ये काम बहुत अच्छा किया है, मैं आपके लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ. अगर आप ये काम ऐसे करते तो और अच्छा रहता. या कोई चीज है मुझे उसको अगर बतानी, तो मैं उसको ऐसे भी शांति से भी बता सकती हूँ. आपको लगेगा हमारी इंडियन मेंटालिटी होती है, मुझे पता है कि हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी होती है कि लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते. यानी आपको लगता है कि नहीं, उनको मारेंगे पीटेंगे तो ही वो समझेंगे. ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी खुद की एक लिमिटेशन हो गई है. मैं यहाँ पे देखती हूँ बच्चों को, यानी मैं अभी इंडिया में आई थी, मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी कि कैसे यहाँ के लोग अपने बच्चों से बात करते हैं. हे हनी, प्लीज डू दिस, प्लीज डू दैट, ऐसे बात करते हैं यहाँ आपके पेरेंट्स. और आप नहीं बिलीव करोगे कि उनके बच्चे उनको हमेशा सुनते ही है. मैंने देखा है कि इतने डिसिप्लिन में वो लोग रहते हैं. मैं एक फैमिली के साथ जाती हूँ अभी हाइकिंग पे मोस्ट ऑफ द टाइम, और उनके 4 बच्चे उनके साथ आते हैं और उनके चारों बच्चों को वो सिंक में रखती है.
और हमें इंडियंस को होता है कि नहीं, हम बच्चों को जब तक चिल्लाएंगे नहीं तब तक उनको पता नहीं चलेगा। एक्चुअली हमारी ही ये माइंडसेट हो चुका है। तो ये भी सब चीजें आप समझे, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि अचानक से आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, पर ये सब चीजें धीरे धीरे समझे। अगर आपको बच्चों की तरफ से एक पैटर्न बन चुकी है, एक हैबिट बन चुकी होगी शायद, जो मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी भी कहीं ना कहीं पे हैबिट्स है कि मेरे पहला रिएक्शन ऐसा होता है कभी कभी जो नेगेटिव होता है अपने बच्चों की तरफ। मैं भी अपने बच्चों के बारे में कभी कभी कंप्लेन, अभी मैं नोट करती हूँ कि हाँ, मेरे एक एक वाक्य, एक एक सेंटेंस के अंदर कितनी कंप्लेंट्स छुपी होती है बच्चों के लिए। तो अभी वो इसको मैं तुरंत ही रिप्लेस करती हूँ कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड के साथ। अगर आपको अपने बच्चों के साथ का रिलेशन और अच्छा करना है, या आपके बात आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपको सुने, आपकी बात समझे, तो प्लीज उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड चालू कर दो। ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रैक्टिस में आपको बताती हूँ। अगर जिनके बच्चे बहुत छोटे 7 ईयर्स से कम हैं, आपने राजन सर को भी सुना होगा, वो हमेशा बोलते हैं कि 7 साल के पहले बच्चों की जो कंडीशनिंग होती है, कॉन्शियसनेस की जो कंडीशनिंग है, वो 7 साल से मतलब 7 साल के तक जो बनती है, तब तक आप उसे स्टिल आप चेंज कर सकते हो। 7 साल के बाद थोड़ी वो मुश्किल होती है, वो कंडीशनिंग बन जाती है, क्योंकि जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है तब तक। पर 7 साल तक अभी भी वो आपके हाथ में कि आप उसको कैसे चाहो वैसे कंडीशनिंग कर सकते हो। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स का सुना है कि वो अपने बच्चों को ये जो मिरर वाले एफर्मेशंस होते हैं, अपने बच्चों को भी वो करवाते हैं मिरर में। अगर मेरे बच्चे बड़े हैं तो शायद वो नहीं भी सुनेंगे, पर अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आप उससे ये करवाएं, डेफिनेटली उनकी ये कंडीशनिंग होगी। मैंने आपको ग्रुप में आगे ये भेजा भी था। अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी आप ये करवा सकते हो। अगर आप घर में साथ में रहते हो तो आप ये प्रैक्टिस करवा सकते हो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। मिरर प्रैक्टिस इज अमेजिंग प्रैक्टिस बच्चों को अभी अपने कंडीशनिंग करने के लिए। जैसे हमारी कोई कोई कंडीशनिंग हो गई है, जैसे हम क्रिटिसाइज करते हैं बचपन में, पता नहीं किसी ने भी हमें क्रिटिसाइज किया होगा, समाज ने, पेरेंट्स ने, जिसने भी, बट उनको हम ब्लेम नहीं करते, क्योंकि बेचारे उनके पास जो रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से उन्होंने काम किया जो भी था। तो अभी कोई बात नहीं, अभी हम अपने माइंड के ऊपर काम कर रहे, इतने एफर्ट्स डाल रहे। पर अगर आप अपने बच्चों को 7 साल से पहले कंडीशनिंग कर देते हो तो आपके बच्चों की कंडीशनिंग ही वैसी बन जाएगी, उनको आपकी तरह इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो अभी आपको लग रही है इतने सालों के बाद। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी उम्र में आप अपनी कंडीशनिंग को चेंज कर सकते हो, यानी ऐसा भी नहीं कि आप नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट अगर पहले से ही कंडीशनिंग बनी है तो बहुत ही इजी हो जाता है, राइट? ये आप सब लोग भी मेरे साथ अग्री करोगे कि हाँ, अगर पहले से कोई कोई चीज की कंडीशनिंग है, आपके कोई कोई एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे आपकी कंडीशनिंग बहुत ही अच्छी होगी, तो वो एरियाज आपके लिए इजी है कुछ भी करना वहां पे। तो इसीलिए आप ये अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि हाँ, मुझे अपने बच्चों की कैसी कंडीशनिंग करनी है, और ये आपके ही बिहेवियर से, आपके एक्शन से होगी। तो आप ये हमेशा ध्यान में रखें। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. हाँ, तो आप जो भी फील करते हो, जो गुड और बैड, वही आपकी फ्रीक्वेंसी को बनाता है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप ऐसे ही अच्छे वाले सर्कमस्टांसेस, पीपल और इवेंट्स, पूरी ऐसी सब चीजें ही आपके साथ होगी जो भी फ्रीक्वेंसी पे आप होंगे। ये हमेशा समझ लीजिए। और जैसे कभी कभी आप अगर लो फील करते हो, जैसे ही आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, तुरंत ही आपकी जो आपके आसपास की जो चीजें होगी वो भी बदल जाएगी। ये तो सभी ने अब तक आराम से इतना तो एक्सपीरियंस कर ही लिया होगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Change your frequency at any time by changing how you feel
and everything around you will change because you are on a new frequency. हाँ, तो आपके हाथ में है आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा आप सोच रहे हो, क्योंकि कोई भी फीलिंग्स भी सोचने के साथ ही चालू होती है। अगर वो थॉट ही नहीं आया तो आपको कभी वो फील नहीं होगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर अंदर पता नहीं कुछ ऐसी फीलिंग्स चलती है जो हमें नहीं पता होता कि क्यों है, पर तो भी आपका कहीं ना कहीं पे पिछली लाइफ में से कुछ थॉट चल रहा होगा अंदर सबकॉन्शियस में, जिसकी वजह से वो फीलिंग्स आई है। कोई बात नहीं, फीलिंग्स को आने दो। आप नोट करो अपने आप को कि आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा सेल्फ सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, और आपके हाथ में ही है ये फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। और आप कैसे चेंज करोगे? जो आपको पसंद है वो चीज करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। ओके। If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. कोई कोई चीजें ऐसी होगी कि आपको रियलाइज करनी होती है, आपको एक्सेप्ट करनी होती है कि हाँ ये गलती है। जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ यहाँ पे ये मेरी गलती, एक तो सबसे बड़ी चीज ये समझ लो कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी पूरी लाइफ के लिए। अगर आउटर सर्कमस्टांसिस में कोई लोग आपके साथ अच्छा नहीं सुलूक कर रहे, कोई बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसके कारण आप ही है। जब भी आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, उसके बाद आपके लिए ये एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा कि हाँ ये मेरी वजह से ही है, कहीं ना कहीं पे मैंने ही ऐसे थॉट दिए हैं पहले और इसीलिए मुझे अभी ये मिल रहा है। या तो अगर कहीं पे आपकी गलती हुई है तो भी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारा माइंड का ईगो हमें एक्सेप्ट करने नहीं देता है इजीली। वो एक पर्दे की तरह हमारे आंखों के सामने होता है, एक क्लाउड की तरह। जब तक वो क्लाउड नहीं हटा तब तक हम ट्रूथ को, जो सच्चाई है, वो हम नहीं देख पाते। तो ये भी सब चीजें आपको धीरे 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 एहसास होगा कि हाँ जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे वो चीज वहीं पे आधी सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर। यू आर ऑन म्यूट राजेश्वरी। Yes, sorry. Many people put their feelings on automatic pilot. Their feelings are reaction to what happens to them. However, they don't realize that it's their feelings that are the cause of what happens to them. तो ये कितनी अच्छी यहाँ पे बात बोली है कि आपको रियलाइज नहीं होता है कि आपकी फीलिंग्स है जो जिसके कारण आपके साथ ये सब होता है। पर आपको क्या लगता है कि यार मेरे साथ ये होता है, आपको लगता है कि इसकी वजह से मुझे ये रिएक्शन आया, उसकी वजह से आप किसी न किसी चीज को ब्लेम करते हो कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस हैपन टू मी। उल्टा होता है, जो आप फीलिंग्स आप फील करते हो उसकी वजह से जो भी होता है आपके साथ होता है हमेशा। तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी तरह से, आप किसी और को नहीं बदल सकते हो। आपको अपने आप को बदलना है, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, हमेशा ही उसके ऊपर ध्यान रखना है कि ये ऑटो पायलट पे ना चली जाए। आपको इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। अगर आपको कभी भी लगे कि है मैं ऑटो पायलट में चली गई हूं, तो आप ये एफर्मेशन कर सकते हो कि आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप एंड आई एम द मास्टर ऑफ माई फेथ। ये एक एफर्मेशन में बहुत करती थी पहले, ये मैंने अपने स्टेटस में भी कभी कभी लगा रखा था कि ये अगर मैं जब भी ये मैसेज देखूं तो मुझे ये याद आए कि मेरे हाथ में ही है सब कुछ, मेरी पूरी लाइफ अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। because I am the captain of my ship and I am the master of my faith। तो ये आपको ही अपने फेथ को मास्टर करना है। मम्मी को कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज किया है। लकी ने मोकल दिया है। हाँ हाँ, ओके ओके, पक्का पक्का मैं भेज देती हूँ। अगर मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर सकती तो भी मैं भेज दूंगी। पर आपको मैं बताना चाहूंगी कि कल मेरी मम्मी से बात हुई और मुझे इतना अच्छा लगा उनके साथ बात करने के बाद कि वो बोले कि कोई कोई चीजें अभी वो खुद इंग्लिश में लिखने भी लग गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि कोई कोई चीजें वो पहले उनको वो मेमोराइज करना पड़ता था,
अब चीजें अपने आप उनके माइंड में आती है, वो अपने आप वो एफर्मेशंस लिख रहे हैं अभी। तो ये कितनी अच्छी बात है कि वो इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतनी ये उम्र में भी उनको इतना पता है कि हाँ, उम्र का कोई बैरियर नहीं होता है, उम्र की कोई वो नहीं होती है, ये सब बैरियर्स हमने खुद ने अपने ऊपर बना के रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी उम्र में आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, उसके लिए कोई कोई पर्टिकुलर उम्र नहीं है, बस आपकी विलिंगनेस चाहिए चेंज करने की। जो मम्मी के अंदर है बहुत ही अच्छी, उनके अंदर ये एक विलिंगनेस है कि हाँ उनके हाथ में है और ये बदल सकते हैं। तो ये एक चीज बहुत ही इंस्पायरिंग है हम सबके लिए। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। To change anything, whether it's the circumstances of money, health, relationships, or any subject, whatsoever, you have to change the way you feel. यहाँ पे सब एरिया की बात इन्होंने की है कि किसी भी एरिया में अगर आपको कुछ भी चेंज करना है आपकी फीलिंग्स, तो आप बदल सकते हो, एनी टाइम आपके हाथ में है। और हमें तो ये अच्छा ब्रह्मास्त्र मिल गया है ऑलरेडी, जो ग्रेटिट्यूड का ब्रह्मास्त्र है, हमको वही सभी जगह पे यूज करना है। अगर कोई भी चीजें हमें चाहिए, हमें वो करनी है, तो हमें बस ग्रेटिट्यूड 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 करना है, जितना हो सके इतना ग्रेटिट्यूड करना है सभी चीजों के लिए। ओके। Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but stress. राइट, या सो यहाँ पे क्या बोला है कि ये सब चीजें हैं जो कंप्लेनिंग है, क्रिटिसिज्म है, फाइंडिंग फॉल्ट है, ब्लेम है, ये पूरे नेगेटिविटी के फॉर्म से, इससे कुछ नहीं होगा। आप ही अपने आप को अंदर से और नेगेटिविटी में लेके जाते हो ये सब चीजों से। तो बहुत ही अच्छा है कि हमें अभी पता है कि क्या करना है। अगर हम किसी के बारे में कंप्लेंट स्टार्ट करते तो तुरंत ही हमें अपने आप को ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में लेके जाना है। अगर हमें किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म है, अपने आप को भी हम हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने आप को भी हम बहुत बार गिल्टी फीलिंग्स में लेके चले जाते हैं, अपने आप को भी ब्लेम करते हैं सभी चीजों के लिए। वो भी करना आप कब छोड़ पाओगे कि जब आप ग्रेटिट्यूड में चले जाओगे, अपनी खुद के लिए भी आप ग्रेटिट्यूड करो। जो भी 27 डे पे आएगा कि मिरर में मैजिकल मिरर जो प्रैक्टिस होती है, वो अपने खुद के लिए हमें ग्रेटिट्यूड करने की प्रैक्टिस होती है। तो ये सबके लिए तो हम ग्रेटिट्यूड करते हैं पहले, अगर हम सबके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाते, सबकी वजह से जो हमारे अंदर के मेल को अगर हम नहीं निकाल पाते, तब तक हम अपने आप के लिए भी ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर पाते। इसलिए इन्होंने वो प्रैक्टिस पूरी लास्ट में रखी है कि पहले आप अपना कमाओ, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से अपना पावर कमाओ, उसके बाद आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो। यानी यहाँ पे एक एक प्रैक्टिस बहुत ही उन्होंने सोच समझ के उन्होंने प्लान की हुई है। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है। और ये सब चीजें जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑटो पायलट में ना चली जाए और आप उसका कंट्रोल ले लो अपने हाथ में। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Throw out of your vocabulary words like terrible, terrible, horrible, disgusting, and awful. Use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful. हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये समझ ले कि ये ऐसे वर्ड्स को ही अपनी लाइफ में से निकाल दो। ये जो टेरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग, ओफुल, हिंदी में पता नहीं कौन से वर्ड है, मुझे इतना आता नहीं है। आप अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो कि हिंदी में भी कोई कोई वर्ड ऐसे होंगे जो बहुत ही बकवास एक वर्ड होता है, पता नहीं, और एक और कई सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बोलते होंगे। तो अभी कॉन्शियस हो जाए, जब भी आपके मुंह से अगर ये वर्ड्स निकल भी रहे हैं तो उसी टाइम पे अपने आप को रोक ले और उसे तुरंत ही अच्छे वाले वर्ड्स के साथ आप अद्भुत, ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, एक राजन सर के ही उसमें हम लोगों ने सीखा था। ये हिंदी का वर्ड है अद्भुत।
सभी चीजों के लिए आप अद्भुत वर्ड यूज करें। फैंटास्टिक, अमेजिंग, फेबुलस, ब्रिलियंट, वंडरफुल, ये सारे इंग्लिश के वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको हिंदी में करता है तो अद्भुत, वंडरफुल, ऐसे वाले वर्ड आप यूज कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही समझने की बात है, क्योंकि आप अपने वर्ड्स के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को पावर दे रहे हो। जो भी वर्ड्स आप बोलते हैं उसमें भी बहुत फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें बहुत पावर होता है। आप खुद ही समझना कि आप कुछ एकदम ऐसा बोल रहे हो, एकदम जो न्यूट्रल वाला फीलिंग है वो बोल रहे हो कि चलो हाँ, माई पार्टी वॉज नाइस, ऐसा बोला। पर अभी आप बोलते हो कि पार्टी वॉज अमेजिंग, इट वॉज फैंटास्टिक, आई एंजॉयड सो मच। तो यहाँ पे आपने इतनी सारी फ्रीक्वेंसी का पावर दे दिया उस वर्ड्स को। जितना आप उस ये सब चीजों को मैग्नीफाई करते हो, इतना ही आप अच्छा फील करते हो। जितना आप अच्छा फील करते हो, वही सब चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो बातें नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है और ये सभी की लाइफ में अभी ऑपरेट कर रहा है। अगर आप ये एक्सेप्ट करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो लेट्स सी। Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scale of your life. और आपको बस खाली 50% से ज्यादा आपको ये देखना है कि मेरे थॉट्स गुड फीलिंग जोन में मैं रहूं। जो हमारा जो चार्ट है, जो लाइन के अबो वाली फीलिंग्स और लाइन के बिलो वाली फीलिंग्स, अभी ये चार्ट आप सब अपने स्क्रीन सेवर पे या कहीं पे भी, जहां पे भी आपको प्रोमिनेंट दिखता है वहां पे रख दीजिए। ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप कौन से वाले फीलिंग जोन में हो। क्या आप अबो वाले फीलिंग जोन में हो या बिलो वाले में हो। पहले पहले आपकी प्रैक्टिस लगेगी, फिर आप अपने आप को खुद ही कैच करना सीख जाओगे कि मैं कौन से फीलिंग जोन में जा रही हूँ, मैं कौन से फीलिंग जोन में हूँ। तो ये सभी चीजों में आपको हमेशा इतना ही खाली ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 51% ऑफ द टाइम आप गुड फीलिंग्स दे रहे हो, लव की फीलिंग्स दे रहे हो आप। यानी आप अच्छा फील करते हो, उसका मतलब ही है कि आप लव भेज रहे हो, प्यार भेज रहे हो फ्रीक्वेंसी में, यूनिवर्स में। ओके, सो लेट्स रीड। Every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life, and on any one day you can change the future through the way that you feel. तो ये आप हमेशा अपने टिपिंग पॉइंट के अपनी लाइफ पे हमेशा स्टैंड करते हो। एवरी सिंगल डे आपके हाथ में है कि आप अपना फ्यूचर क्या चाहते हो, थ्रू द वे दैट यू फील। कैसा फील कर रहे हो उसके ऊपर ही आपका पूरा ये छिपा हुआ है। पूरा आपका जो आपका फ्यूचर है वो सभी आज के ऊपर है। आज आप क्या फील कर रहे हो, आज आप कैसी फ्रीक्वेंसी दे रहे हो यूनिवर्स में, आज अपने माइंड में आप कौन से सीड्स प्लांट कर रहे हो, इसके ऊपर ही आपका पूरा भविष्य छुपा हुआ है। तो इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पावर बुक हमें एकदम अंदर से ये सब चीजें सिखाती है। तो प्लीज आप एक और बात बोलूंगी कि आप सब लोग टाइम पे आ जाइए यहाँ पे। और टाइम पे आने के क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने भी ये चीज में बहुत स्ट्रगल किया है। ये टाइम को लेके मैंने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है कि टाइम पे कितना भी मैं सोच लूं, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाती थी, कहीं ना कहीं पे अपने आप को कोसती रहती हूँ। अब मुझे पता चला कि मैं कोस कोस के उसको और ज्यादा वो बैड फीलिंग्स दे रही थी। अब जाके मुझे ये बात समझ में आई को टाइम को भी इम्पोर्टेंस दे। टाइम को, अगर आप अभी टाइम पे कुछ नहीं, अगर आप कहीं कहीं पे आपको ऐसा मिस हो रहा है टाइम पे चीजें करने में, तो टाइम के लिए भी आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करें, अच्छी वाली फीलिंग्स दे उसको। तो वैसे धीरे 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 करके आप एक वो मकाम पे पहुंचेंगे। हाँ, मुझे भी पता है कि मुझे भी बहुत टाइम लग रहा है उस चीज को लाने में।
पर मैं सबको बोलूंगी कि हाँ, मैं अपना ये जो सेशन है टाइम पे स्टार्ट करूंगी हमेशा ही। तो अगर आप लेट आ रहे हो तो आपका लॉस होगा, इसलिए मैं प्लीज आप सबको बोल रही हूँ कि अगर 5:15 का टाइम है तो प्लीज टाइम पे ज्वाइन हो जाइए। एक और इंटीग्रिटी रखे कि आपका जो वीडियो है वो ऑन रखे, ये भी एक आपकी इंटीग्रिटी होती है। हाँ, मुझे पता है कि कभी कभी आप नहीं ऑन रख पाते हो, जैसे मैं हूँ, मैं अगर अपने जॉब पे हूँ और मैं अगर ये लिसन करती हूँ सेशन, तो हाँ, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसी कोई चीज है तो कोई बात नहीं, वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हो अगर, पर अगर आप घर में हो, आप कर सकते हो तो प्लीज पक्का इसको ऑन करके बैठे। इससे आप खुद ही अपने आप को अकाउंटेबल रहते हो कि हाँ, वीडियो ऑन करने से आप खुद ही वहां पे, अभी यहाँ पे प्रेजेंट मोमेंट में हो, ये सब चीज जो लर्निंग हो रही है आप उसको ले रहे हो अपने अंदर, तो ये भी एक इंटीग्रिटी का पार्ट होता है। तो ये भी आप समझे, अपने आप से ही, खुद से ही समझे। ओके, सो कल से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा, द पावर एंड क्रिएशन। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अभी तक जब हम बातें कर रहे तो फीलिंग्स की बातें कर रहे, अब जब हम बातें करेंगे तो ये इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, कैसे हमें ये सब करना है, कैसे खुद ही हम हमारी लाइफ को बना सकते हैं, ये सब चीजें। जैसे अभी किसी से भी मेरी बात होती है तो मैं एक चीज माइंड करती हूँ, एक चीज मैंने उनको उनके अंदर ढूंढा है कि वो हमेशा ये बात करते हैं कि मुझे क्या नहीं चाहिए। हाँ, मेरे अंदर भी ये होता है कि मैं कभी कभी ऐसी चीजों में चली जाती हूँ कि क्या मुझे नहीं चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि आप और ऐसी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अभी आपको क्या करना है, आपको हमेशा, अगर आप ऐसी चीजों पे जाते हो कि आपको क्यों, जो इरिटेट करती है, एनोय करती है, जो चीजें आपको नहीं चाहिए, उसको तुरंत ही रिप्लेस करें कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्या चाहिए आपको। अगर कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन में आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली, क्या चाहते हो आप, उसके ऊपर फोकस करें। अगर कोई कहाँ पे, अगर कहीं पे आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो वो ट्रिप से आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो ये आपको खुद को ही एक प्रैक्टिस लगती है। धीरे धीरे करके ये प्रैक्टिस आएगी, नेचर आपका बदलेगा, हैबिट्स आपकी बदलेगी। पर आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि हाँ, अगर मैं ज्यादा, अभी मेरे पूरे दिन में अगर ज्यादा मैं वो चीजों को ध्यान दे रही हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, तो उसको, इसको मुझे आज से रिप्लेस करना है कि क्या मुझे चाहिए एग्जैक्टली। इसीलिए हम हमेशा ये ड्रीम लिस्ट बनाते हैं, मैजिकल टू डू लिस्ट बनाते हैं। एग्जैक्टली हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हम इतने अपनी रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं कि हमें खुद को ही पता नहीं होता कि हमें चाहिए क्या एग्जैक्टली। और हमारा कितना 90% ऑफ द टाइम हमारा ध्यान यही चीजों पे होता है कि जो हमें नहीं चाहिए। तो ये सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी लर्निंग है। तो ओके, सो राजेश्वरी, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली। यहाँ पे जो भी लोग हैं जो रीड करने आते हैं, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों की वजह से ही ये एक हमारा सेशन चलता है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से रीड करते हो, उसके लिए भी धन्यवाद। Okay, so let me read this, our heart thought. So we need to do more than just treat the symptom. We need to eliminate the cause of the disease. We need to go within ourselves where the process of illness began. So कल हमने पढ़ा था कि हमारे खुद के ही हैंड्स जो है वो हीलिंग हैंड्स होते हैं। तो हमें खाली सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना है, जो हमारी डिजीज है वो सिम्टम से तो बहुत ज्यादा है। तो ये हमको अंदर जाके हमें देखना होगा कि ये एक्चुअली, ये हमारी जो डिजीज है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से बिगिन हुई है, उसके रूट कोज में जाके हमें देखना है। तो आज का जो हमारा हार्ट थॉट है जो है, एवरी हैंड दैट टचेस मी इज अ हीलिंग हैंड। So I am a precious being and loved by the universe. As I increase the love I have for myself, so too does the universe mirror this, increasing love ever more abundantly.
तो यहाँ पे कितनी अच्छी उन्होंने बात बोली है कि मैं खुद भी एक प्रेशियस बीइंग हूँ, मैं खुद बहुत इंपॉर्टेंट हूँ यूनिवर्स में, और मुझे यूनिवर्स बहुत प्यार करता है। और जैसे जैसे मैं अपने आप के लिए लव, ये अपने आप के लिए प्रेम बढ़ाती जाती हूँ, वैसे ही यूनिवर्स वो चीज को मिरर करता है। तो वो यूनिवर्स वो चीज को लाके मेरे पास रखता है जिसको मैं और ज्यादा एबंडेंट पा सकूं अपनी लाइफ में, जिसको मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में। और ये एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आपको लगेगा कि यार मैं अपने खुद के बारे में हमेशा सोचूं, खुद के बारे में ही करूं, अगर मैं अपने आप के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, ये सब चीजें करूं, तो क्या मेरे बच्चे छूट जाएंगे, मेरा हस्बैंड छूट जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बात समझ लीजिए, जब आप अपने आप को प्यार करने लगते हो, आप अपने आप को अंदर से प्यार से भरते हो, तो आप खुद ही एक प्यार का वो एक स्रोत बन जाते हो। आप खुद अपने बच्चों के साथ या अपने हस्बैंड, अपने फैमिली को भी आप इतना ही प्यार दे पाओगे अगर आपके अंदर वो प्यार होगा। ये एक बहुत ही अच्छी समझने की यहाँ पे बात है। अगर आप अपने आप को प्यार कर रहे हो तो ये सेल्फिशनेस नहीं है। खुद को प्यार करना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपको सब और चीजों को इम्पोर्टेंट देना है। यहाँ अपने आप को आप बिल्ड कर रहे हो। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तभी आप किसी और को प्यार कर पाओगे, वो प्यार दे पाओगे। ये बहुत ही समझने की बात होती है। अगर आपके अंदर की कंडीशनिंग ऐसी है तो प्लीज उसको चेंज करें। अगर यहाँ पे लुइस है, रोंडा बर्न्स, सब कोई बोल रहा है, तो हाँ, इसके पीछे है। अगर आप देखना ये सब चीजें, लोगों को, जिन लोगों को अपने खुद के लिए प्यार ज्यादा होगा, वो ऐसे लोग होंगे जो सभी लोगों में भी इतना प्यार बांट सकते हैं। देखना आप, जो भी लोग ऐसे होंगे जिनको खुद के लिए प्यार नहीं है, वो खुद के लिए तो प्यार नहीं है, वो अपनी लाइफ में आसपास के लोगों की लाइफ को भी मिजरेबल बनाते होंगे कहीं ना कहीं पे। ये एक बहुत ही समझने की बात होती है। यहाँ पे कोई सेल्फिशनेस नहीं है, यहाँ पे वो ईगो की बात ही नहीं हो रही है जो सेल्फिश ईगो होता है। यहाँ पे बात है कि आप अपने आप से खुद से प्यार करें तो ही आप किसी और को प्यार कर पाओगे। और हाँ, यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आप सबके लिए इतना प्रेयर्स करें, सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजे, तब धीरे 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 ये मकाम पे भी आप पहुंचते हो कि अपने आप को प्यार कर पाते हो। तो ये एक दो चीजें बहुत समझनी जरूरी है, जो आगे जाके आपको धीरे धीरे पता भी चलेगा। ये पावर बुक में भी आएगा, द यूनिवर्स एंड यू एंड वो द पावर ऑफ यू, द लॉ ऑफ यू। जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है जिस तरह से, वैसे लॉ ऑफ यू होता है, जिसमें आपको खुद से, क्योंकि आपके अंदर ही भगवान बसते हैं, आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। जब तक आपको ये रियलाइज नहीं होता, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये काम करता है ये सब चीजें। I know that the universal power is everywhere, in every person, place, and thing. This loving, healing power flows through the medical profession and is in every hand that touches my body. So ये समझ लीजिए, अगर आप किसी और डॉक्टर के पास भी जाते हो, मान लो आपको अभी भी अपने आप को हील करना नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, पर अगर आप किसी और के पास जाते हो, कोई हेल्प लेते हो, जब भी आप वहां पे भी आप ऐसे थॉट से जाओ कि जो भी हैंड मुझे जो टच करता है वो हीलिंग हैंड है, ये आपके ही हाथ में है। एक डॉक्टर अगर आपके साथ अच्छा कुछ नहीं किया है, तो वो डॉक्टर को भी आप अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ आप बदल सकते हो, या तो फिर आप ऐसे डॉक्टर्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपके लिए हीलिंग हैंड होगा। तो ये भी एक बहुत ही बारीकी से समझने की बात होती है कि सभी चीजें हमारे हाथ में है। क्या हम सोचते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी हम देते हैं, वैसी ही चीजें हमारे पास चल के आती है। My presence helps to bring out the spiritual healing qualities in each practitioner. Doctors and nurses are amazed
their abilities to work as a healing team with me. खुद डॉक्टर परेशान हो जाओगे कि चलो डॉक्टर के किसी और के साथ जो भी किया होगा, किसी और के साथ वो कैसे भी पेश आए होंगे, पर वो आपके साथ अलग तरह से होंगे। वो खुद अमेज हो जाते हैं अपनी खुद की एबिलिटीज के साथ। मैं खुद अमेज हो जाती हूँ कभी कभी मेरी खुद की एबिलिटीज के साथ कि हाँ, मैं कभी कभी जब बात करती हूँ तो मेरे अंदर से जो बातें निकलती है, मैं खुद भी अमेज हो जाती हूँ, क्योंकि आप मुझे अच्छी फ्रीक्वेंसी देते होंगे कभी कभी, तो मैं आपके साथ इसी तरह से पेश आती हूँ। तो सेम वे में जब आप अपनी अच्छी फ्रीक्वेंसी और लोगों को देंगे, वो आपके सामने ऐसे ही अपीयर होंगे। ये बहुत ही अच्छे से समझने की बात है। तो यहाँ पे ये लुइस ने बहुत ही अच्छा थॉट आज हमको दिया है कि एवरी हैंड दैट टचेस मी इज अ हीलिंग हैंड। ये बारीकी से समझने वाली बात है कि किसी को भी आप अपनी हीलिंग वाली फ्रीक्वेंसी में ला सकते हो, अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स की पावर के साथ। ओके, और ये बात भी समझ लीजिए कि आपके अंदर जो ब्रह्मांड जो बसता है वो सभी के अंदर है। इन एवरी पर्सन, एवरीथिंग, एवरी प्लेस, वही लविंग यूनिवर्स सभी के अंदर है। ये अभी इतना ही हो रहा है कि कोई कोई चीज इसको टैप कर पाते हैं, कोई कोई लोग उसको समझ पाते हैं, कोई कोई लोग उसको समझ नहीं पाते हो। जो चीज को आप अपना ज्यादा पावर देते हो, अपने आपके अंदर भी ऐसे गुड फीलिंग्स है, बैड फीलिंग्स है, आपके अंदर भी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। अगर आप अपनी अच्छाइयों को ज्यादा पावर देते हो तो वैसे ही आपको अपीयर होती है अपनी लाइफ। अगर आप अपनी बुराइयों को ज्यादा पावर देते हो तो वैसे आप अपीयर होंगे। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ऐसे ही लाइफ भी बहुत ही सिंपल है, उसको हमने ही कॉम्प्लिकेट किया है अपने माइंड के अंदर। मैं बोलूंगी कि हाँ, मैंने भी किया है, कहीं ना कहीं पे सबने ही किया है। ओके, सो that's all for today, and now we can move on to our meditation. और आज का चैप्टर बहुत ही इजी था, दोनों चैप्टर, तो हमारा बहुत जल्दी जल्दी ये फिनिश भी हो गया। तो लेट्स डू आवर मेडिटेशन। ओके, सो we just had the most amazing family vacation. This is so exciting. sorry. साहब, आप सबको ये सुनाई दे रहा है? प्लीज ट्राई करिए आप सब लोग के टाइम पे आ जाए। यहाँ इंडिया के 2:45 PM और यहाँ पे उस टाइम पे 5:15 बजे होते हैं। तो दिस इज जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर। I mean, you have the YouTube link, but still, if you want to come, please join on time. Try to join on time. जैसे मेरा भी एक ब्लॉक होता था पहले कि मैं टाइम से ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, मेरे ये है, मेरे ये काम है, वो है। मैंने अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर रख दिया, खाली 2 मिनट से पहले वाला रिमाइंडर। तो जब भी अब मैं अपने सेशंस को अटेंड करती हूँ, मैं मोस्टली आई मेक श्योर कि मैं अपने टाइम से उसको अटेंड करूँ। तो ये हम सबके लिए है ये प्रैक्टिस। तो आप भी ये एक अपना रिमाइंडर रख सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, जो 2:45 की जगह पे आप रख दीजिए 2:40 के लिए आप रिमाइंडर रख सकते हो। या जो भी आपको, आप अपने आप को ज्यादा जानते हो मुझसे भी, तो अपने रिमाइंडर को अपने आप की तरह अपने मतलब अपने आप कर सकते हो अपने फोन में। तो ये रोज का एक रिमाइंडर आप रख सकते हो। मैं सभी चीजों के लिए रिमाइंडर रख देती हूँ जिसकी वजह से मेरे माइंड को मैं फ्री रख सकूं, मेरे माइंड को मैं ऐसी चीजों में ध्यान दूं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये आप लिख भी सकते हो, लिखने से भी बहुत कुछ फ्री हो जाता है। ओके, सो दिस इज जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर। ओके,
तो सभी को ये सुनाई दे रहा है अभी म्यूजिक? आप सबको ये म्यूजिक सुनाई दे रहा है? यस अलिफिया, सुनाई दे रही है। ओके, थैंक यू। मुझे जस्ट आई नो कि सुनाई दे रहा होगा, तो भी आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर बिकॉज दिस टाइम द लाइक वॉल्यूम इज अ लिटिल लो, इसलिए। ओके, सो लेट्स डू अवर मेडिटेशन। You all sit in a very straight position. अपने स्पाइन को पूरा सा अच्छे से स्ट्रेट कर ले। अपने फीट्स को ग्राउंड के साथ टच कर सकते हो तो करें। अगर आप योगिक वाले पोज में बैठते हो तो कोई बात नहीं। आप अगर आप वो पलाठी वाल के बैठते हो, क्या जो भी बोलते हो उसको, अपने लेग्स को फोल्ड करके बैठते हो, तो अपने हिप्स के नीचे कुशन या ऐसे कुछ रख दे तो आपका स्पाइन भी स्ट्रेट रहेगा और आपको दर्द नहीं होगा स्पाइन में। अगर आप चेयर पे बैठते हो तो सबसे बेस्ट है ऐसी चेयर ले ले जहाँ पे आपका स्पाइन स्ट्रेट रह सके। जैसे ये मेरी जो चेयर है वो डाइनिंग टेबल वाली चेयर है, तो मैं हमेशा इसके ऊपर बैठती हूँ जिससे मेरा हमेशा स्पाइन स्ट्रेट होता है और मैं जितना भी देर तक बैठूं मुझे दर्द नहीं करता है। तो आप भी अपना ऐसा पोस्चर बना लें जिसमें आपको दर्द ना हो। ओके, सो लेट्स प्लेस आवर हैंड्स ऑन आवर लैप और आवर थाइज एंड फेसिंग द हेवंस अबव, आईज क्लोज्ड। सो आपके अंदर जाना है, आपको डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को रिलैक्स करना है पहले। सो लेट्स टेक अ डीप इनहेल, होल्ड कीजिए, नाउ एक्सेल। Now take a deep breath in of so much gratitude. अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भर ले। Now exhale the love out. Let's inhale the light, the magical light. Hold. Let's breathe out the love, the light that we want to spread, our light that we are spreading in every human being on this whole planet. Let's just focus on our breathing for few seconds, few minutes. और ब्रीदिंग के साथ आप ये दो साउंड सुन सकते हो। जब इनहेल करते हो तो सो वाला साउंड निकलता है और जब आप एक्सहेल करते हो तो हम साउंड निकलता है। तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। अपने आप के मन के अंदर आप सो हम ऐसा बोल सकते हो जैसे जैसे आप इनहेल और एक्सहेल करते हो। जैसे मैंने श्वास लिया तो मुझे ये सो साउंड सुनाई दिया, उसके ऊपर मैं फोकस करती हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। अभी ये आप 10-20 टाइम्स अपने मन में
ये बोले, सो हम साउंड के ऊपर पूरा अपना फोकस कीजिए। आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हो या तो अपना जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो भी कर सकते हो। बस आपको ये 2 साउंड के ऊपर फोकस करना है। सो हम, सो हम, सो हम। हमारे जो 7 चक्रास है, जो हमारे एनर्जी के व्हील्स है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे एक के बाद एक। सो हमारा जो सबसे बड़ा एनर्जी चक्र है, जो हमारे बिल्कुल हेड के ऊपर होता है, सिर के ऊपर, तो ये जो हमारा एनर्जी चक्र है जिसको बोलते हैं हमारा जो क्या नाम है, सहस्रारा चक्र, सॉरी एकदम माइंड से निकल गया। ओके, सो सहस्रारा चक्र जो हमारा क्राउन चक्र है, उसके ऊपर हम फोकस ले जाएंगे। तो ये जो चक्र है वो ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। ये वही लोग होते हैं जो जिनके ये चक्र ओपन, जब ये चक्र ओपन होता है तो वो ये बात समझ जाते हैं कि डेथ और लाइफ वो क्या चीज है। उनको ये पता चल जाता है, जो हमारा जो सिक्स्थ सेंस भी बोलते हैं हम, जो ब्रह्मांड के साथ जुड़ा होता है। तो इसको लॉ ऑफ ट्रांसेंडेंस भी बोलते हैं, जिनको जो डेथ को समझ जाते हैं, जिनको डेथ से डर नहीं लगता। तो ये उसका एक हमारा ये जो चक्र है, अगर इसको ओपन करने के लिए जो अफर्मेशन है वो है, आई एम कनेक्टेड टू माय हायर सेल्फ एंड आई एम कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। I am guided by my inner wisdom. अभी इसका जो कलर है ये चक्रा का, वो है वायलेट कलर। तो आप कलर भी इमेजिन कर सकते हो, जो वायलेट कलर है वो आपको, जब मैं आप बोलती हूँ कि आपका ये सिर के ऊपर है, तो आपका पूरा फोकस वहां पे आपको लेके जाना है। ओके, अभी हम हमारे दूसरे चक्रा के ऊपर अपना फोकस लेके जाएंगे, विच इज अवर अग्नि चक्रा, जो थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं। कोई लोग उसको अग्नि चक्रा भी प्रोनाउंस करते हैं। जो थर्ड आई के ऊपर है, हमारा जो आईब्रोज के बीच के वाला जो पॉइंट है, उसके ऊपर है हमारा ये चक्रा। जब ये एनर्जी सेंटर्स ओपन होता है, तब हमारा इंट्यूशन, जो हम बोलते हैं हमेशा इंट्यूशन, वो इंट्यूशन को हम अपना समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, इंट्यूशन को हम फॉलो कर सकते हैं जब हमारा ये चक्रा ओपन होता है। तो अपना फोकस वहां पे ले जाए। इसका जो कलर है वो इंडिगो कलर होता है। तो इंडिगो कलर को आप इमेजिन कर सकते हो अपने ये चक्रा में। ये आपका जो माइंड है उसके ऊपर भी ये चक्रा ही काम करता है।
जो इंटेलिजेंस है आपका, जो भी है, मतलब सेल्फ एस्टीम वगैरह भी है, जो इंटेलिजेंस से आपको आता है, वो सब आपका ये इंट्यूशन चक्र है। इसका एफर्मेशन है, आई लिसन टू माई इंट्यूशन एवरी डे। और सेम लाइक आई एम गाइडेड बाय माई इनर विजडम। The infinite intelligence of my mind reveals to me the true place of my life. My true place in my life, actually. The infinite intelligence of my mind reveals to me the true place of myself in life. अभी आप अपना पूरा फोकस अपने थ्रोट चक्र की तरफ लेके जाइए, जो हमारे थ्रोट के अंदर होता है, ये एनर्जी सेंटर। जब ये एनर्जी सेंटर ओपन होता है तो हम किसी के भी साथ अपनी जो ट्रू फीलिंग्स होती है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये चक्र है जो कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, जो हम ब्रह्मांड के साथ भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसी तरह से हम सभी लोगों के साथ भी हमारी जो अपनी अंदर की बात है वो अच्छी तरह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं जब हमारा ये सेंटर ओपन होता है, जब ये बैलेंस्ड होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे सोशल स्ट्रक्चर में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप को एक्सप्रेस करना। जब आप पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, अपनी अच्छाइयाँ है, बुराइयाँ है, जो भी है, आप इजीली किसी को भी बोल पाते हो, तब आप अपने आप को बहुत ज्यादा ओपन करते हो, अपने आप को बहुत ज्यादा एक रिसेप्टिव मोड में लेके जा सकते हो। और ये यहीं से ये हमारा स्पिरिचुअल जो कनेक्शन है वो भी ये थ्रोट चक्र से ही चालू होता है। तो थ्रोट चक्र हमारा सबसे पहला चक्र होता है जिसको हमें मास्टर करना है अगर हम स्पिरिचुअल रेम्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तब। तो इसके लिए जो एफर्मेशन है, आई एम काम, कॉन्फिडेंट एंड वेल स्पोकन, I express myself truly and easily, and I communicate very effectively with others. मैं अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाती हूँ, be it in a drawing or be it any kind of work or anything that you can think of, जो आपका ये सेल्फ एक्सप्रेशन है, जिसके साथ आपकी क्रिएटिविटी भी जुड़ी हुई होती है। ये थ्रोट चक्र का जो कलर है वो है ब्लू, लाइट ब्लू, जो कलर का अभी मैंने ये जो शर्ट पहना हुआ है वो कलर है आपके थ्रोट चक्र का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर हार्ट चक्र, जो हमारे दिल के अंदर है। जब ये हार्ट चक्र ओपन होता है तो हम इजीली जो भी प्यार है वो रिसीव करने के लिए और देने के लिए ओपन हो जाते हैं। जो ब्रह्मांड का जो प्यार है हमारी तरफ वो भी हम रिसीव करने लगते हैं। अपने आप को पूरे ब्रह्मांड के प्यार से भर ले। इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर है, जो पूरी ग्रीनरी होती है। जब भी हम ग्रीनरी को देखते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है, एक अलग तरह की फीलिंग आती है। तो ये ग्रीनरी है पूरी अपने हार्ट के अंदर, अपने दिल के अंदर भर ले। तो जब भी ये चक्र ओपन होता है तो हमारे अंदर करुणा, जो कंपैशन बोलते हैं, जो काइंडनेस बोलते हैं, वो सब हम ट्रूली एक्सप्रेस कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं।
एक दूसरे के लिए जो हमारा प्यार, जो हमारी प्योरिटी होती है, इसके जो एफर्मेशन है, आई ट्रूली ट्रूली लव माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, आई एम स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट, आई एम मैग्निफिसेंट बीइंग ऑफ लाइफ, I accept everyone as they are. Thank you, God, for all my chakras, my energy centers. Now let's move on to our solar plexus, which is our Manipura chakra, जिसका कलर सन की तरह येलो कलर होता है, जो हमारा सूर्य है। और जब ये चक्रा ओपन होता है तो हमारा सेल्फ एस्टीम, जो हमारे हमको आगे बढ़ने में, जो स्किल्स डेवलप करने में हमें काम आता है, जब ये चक्रा ब्लॉक होता है तो कहीं ना कहीं पे हम अपने आप की एबिलिटीज को समझ नहीं पाते हैं। तो ये चक्रा को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो चक्रा है, हार्ट के बिल्कुल नीचे के साइड पे, जो नेवल के 4 फिंगर अबोव का जो रीजन है, जो हमारा स्टमक वाला जो रीजन है, वहां पे ये चक्रा लोकेटेड है। वहां पे अपना पूरा फोकस लेके जाए, वहां पे अपने ये चक्रा को पूरे येलो कलर से फिल कर दे। तो धीरे धीरे जब आप काम करते जाते हो, जब आप कोई एक्शन लेते हो, धीरे धीरे अपने आप को आप जब खोलते हो, तब आपका सेल्फ एस्टीम जो बढ़ते जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है, इसका जब ये चक्रा ओपन होता है। इसके लिए जो एफर्मेशन है, आई वैल्यू एंड ट्रस्ट माई सेल्फ, I respect myself. Whatever I do in my life is enough for me. And whatever I do in my life, I do it with I do it with love. तो ये आपको अपने आप को बार बार बोलना है ये चक्रा को ओपन करने के लिए। जो सक्सेस पूरी जुड़ी हुई होती है, ये चक्रा से होती है। Now let's move on to our Swadhisthana chakra, which is our this chakra is actually located just 4 fingers below the navel, जो अपने pelvic area होता है, वहां पे ये located है। इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर है, तो वहां पे आप ऑरेंज कलर को इमेजिन करें। ये चक्रा हमारी पैशन, हमारी सेक्सुअलिटी, हमारी क्रिएटिविटी के लिए होता है। जब ये चक्रा ओपन होता है तो हम फ्रीली, इजीली ये सब चीजें जो प्लेजरेबल चीजें होती है, इसको फील कर पाते हैं। इसके लिए जो अफर्मेशन है, आई एम एट ईज विथ माई पास्ट and I embrace all of the positive moments in the present. I'm creative in all areas of my life. Okay, now let's move on to our root chakra, which is located in between the anus and genitals. This chakra is actually, it is very, very important to feel security. जो हमेशा fears रहते हैं, जो भी वो सब है, because of this chakra is blocked. जब ये चक्रा ओपन होता है तो कहीं ना कहीं पे हम सिक्योरिटी फील करते हैं, कहीं ना कहीं पे हम फील करते हैं कि हाँ, एक शक्ति है जो हमें हमेशा गवर्न कर रही है,
वो शक्ति है जो हमें हमेशा ही ये फील करवाती कि हाँ हम सिक्योर है लाइफ में। तो इसके लिए जो एफर्मेशन है, इसका जो कलर है वो है रूट चक्रा का जो कलर है रेड, और उसके जो एफर्मेशन है दैट आई नरिश माय माइंड, माय बॉडी एंड स्पिरिट विथ पॉजिटिव थॉट्स। And I take care of my body in an optimum way. My roots are actually connected to the Mother Earth. जब ये चक्रा ओपन होता है तो आप कनेक्टेड फील करते हो, आप हम्बल होते हो लाइफ में। Okay, let's now thank all our energy centers, our chakras. Now let's invite the energy in our hands and bless all our body parts, our conscious, subconscious mind, our जो crown chakra है वो, अज्ञा चक्रा, eyes, face, पूरे हमारे 5 senses, throat and neck, throat chakra, shoulders, hands, fingers, fingernails, ये पूरे जो एनर्जी सेंटर से हमारे स्पाइन में लोकेटेड है, तो हमारे स्पाइन को भी पूरी तरह से ब्लेस करें। Now let's bless our heart chakra, our heart. Our chest and lungs, all our organs in digestive system, reproductive organs, our excretory organs, our liver, stomach, small and large intestine, kidneys, gallbladder, pancreas. Now let's move on to our thighs, knees, calf muscles, feet, sole of the feet. Let's thank trillions of cells in our body जो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं। Let's thank our skin जो हमारे लिए कितना बड़ा प्रोटेक्शन लेयर है। Let's bless our appearance जो हम देख के अपने आप को जज करते हैं, वही अपीयरेंस हम किसी और को भी कभी कभी देख के जज करते हैं। तो लेट्स ब्लेस कि हाँ हम जैसे भी है अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी स्किन को, अपने स्किन कलर को, टोन को, जो भी है, जैसे भी है, हमें ये सुप्रीम पावर ने बनाया, जैसे भी है हम अच्छे हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Okay, thank you so much, Amina and Mummy, for staying it so long. Okay, thank you so much for joining in, everyone. Love, light, and abundance to all of you, and see you all tomorrow.